السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ آج کا ہمارا وہی موت کا ذکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام تعریفیں صرف اسی پاک ذات کے لیے ہے جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا اور بجلی اور کمکموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کہاں ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے اپنی موت سے اپنی حفاظت کر لی یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں موت کو یاد کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے نرمی، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے، عبادات میں دل لگتی ہے، تسبیحات کرنے کو دل کرتا ہے، پردہ کرنے کو دل کرتا ہے موت کو یاد کرنے سے۔ دیکھیں یہ سب بڑے بڑے جابروں کا جو لکھا ہے کہ موت آ کر ان کو مروڑ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجرموں والا موت سے نجات عطا فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ ہماری جب موت آئے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے، اچھے شکل میں بھیجے، جیسا دیکھ کر ہم خوشی سے ان کے ساتھ جائیں، نہ ہم کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی والا موت عطا کرے۔ یہ موت کا حالت سب کے ساتھ ہی گزرنا ہے، سب کو یقین ہے کہ موت سب کو آئے گا، لیکن پھر اپنا کام ہم سب کرتے رہنا، گناہ کرتے رہنا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر و غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ جب موت ہر شخص کو پیش آنی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، قبر کے کیڑے کا ساتھی بننا ہے، منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، وہی بہت طویل زمانہ تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ کا ٹھکانا ہے۔ تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اسی کے ذکر تذکرہ کا مشغلہ رہے، اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے اور اسی کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے۔ دیکھیں میری مائیں اور بہنیں، یہ جو لکھا نا، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں، آج جو ہمارے بچوں کا یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، بہت سارے سب فیسٹی کرتے ہیں، پارٹی مناتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں منانے کا یعنی حق ادا کرنے کا ہمارے حدیث میں ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو چھوڑ بیٹھے، ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھے، ہم اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ بیٹھے، ہم اپنے سسرال والوں کو چھوڑ بیٹھے اور ہم اپنا پارٹی بچوں کے ساتھ ہی مناتے ہیں، صرف اپنا عرضی خوشی کے لیے۔ یہ سب عرضی خوشی ہے، یہ سب ختم ہونے والا چیز ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی شادی کا رسم ہو، جو ضرورت ہے شادی کا رسم، شادی کرنا ہے تو وہ سنت کے مطابق کریں، اس میں بھی موت کا دھیان رہے کہ ہم ایسا بچوں کا نکاح کرائیں جس کی اس وقت بھی کسی کو موت آ سکتے۔ ہم ایسا ماحول نہ بنائیں
जो बच्चे खुशियाँ मनाते रहें और मौत वक्त उसी वक्त में आ जाए, बच्चों का आ जाए या माँ का आ जाए या बाप का आ जाए या पड़ोस का आ जाए, पड़ोसी का, मौत का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ सकता है। हम हमेशा मौत को याद करके घर का हर चीज़ निभाव करें, शादी से लेकर जो भी घर में दावत से लेकर जो भी करें, घर में नमाज का ध्यान करके नमाज़ पढ़ें, नमाज अदा करके करें। अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को नाराज़ करने से, बंदों को राज़ी करने से अल्लाह ताला वही बंदों के दिल में हमारे लिए नफ़रत डाल देता है। हम अल्लाह को राज़ी करके बंदों का हक़ अदा करेंगे। अगर हक़ अदा करने में कुछ कमी भी हो जाएगा तो अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा कि नहीं, फ़लाँ जो भी है अच्छे हैं, दिलों में मोहब्बत। जिसके किसी के लिए अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा, उसकी कीमत पूरा दुनिया वाला नहीं लगा सकता। और हम अल्लाह का हक़ अदा नहीं करके पूरे दुनिया वालों के पीछे ग़ुलाम बनकर भी उनका मेहनत करें, उनकी खिदमत करें, वो कभी हमको पसंद नहीं करेंगे, उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब इस बात को समझ कर अमल करने की तौफीक अता करे। इसका ज़िक्र तज़किरा रहे, इसलिए कि जो शख्स दुनिया में मनहमक है और इसके धोखे की चीज़ों में फंसा हुआ है, इसकी शहवतों पर फरिश्ता है, उसका दिल मौत से बिल्कुल गाफिल होता है। और अगर मौत का ज़िक्र भी किया जाए तो इसकी तबीयत इससे तकस्सुर और कराहियत होती है। इसी को हक़ ताला शानहू ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, आप इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस पाक ज़ात की तरफ ले जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर बात को जानने वाली है, फिर वो तुमको तुम्हारी सब किए हुए काम जता देगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाए। हम अपनी तन्हाई के गुनाह को देखें, हम अपने माँ बाप से जो नाफरमानी करते हैं उस पर कभी ध्यान करें, हम अपने बड़ों की नाकदरी जब करते हैं कभी उस पर ध्यान करें, हम अपने बच्चों को जो तरबियत में कमी करना कभी उस पर ध्यान करें, हम अपने अल्लाह का हक़ अदा करने में जो कमी करते हैं उसमें ध्यान करें। क्योंकि हम जब अल्लाह के पास जाएंगे सारा चीज़ अल्लाह ताला को ज़ाहिर भी मालूम होगा, बातिन भी मालूम होगा। और हर दिन सुबह शाम हमारा अमाल जो अल्लाह के पास पहुँचता है, हमारे मरहुमीन को अल्लाह ताला बिठाकर, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाकर हमारा अमाल देखते हैं। अगर हमारा अमाल अच्छा होता है वो तो दुआ करते हैं अल्लाह इसी अमल पर उसको पूरा आखिरी सांस तक अता फरमा दे, तौफीक अता फरमा। अगर हमारा अमाल ख़राब है, हमारा कितना गलती होता दिन भर में, हम अपनी गलती पर एहसास करें। वो गलती जब अल्लाह खोलते हैं हमारे मरहुमीन के सामने, तो वो बेचारे उसको देखकर अफसोस करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह उसको इस गुनाह से छुड़ा कर उसको नेकी की तौफीक अता फरमा दे। देखें मेरी माएँ बहनें, हम सब का अमाल हर दिन अल्लाह के पास सुबह शाम 2 वक्त में जाता है। और हमारे जो मरहुमीन हैं वो हमको कितने प्यार करके दुनिया से गए हैं, कितना मोहब्बत करके गए हैं, कितना उनके दिल में हमारी इज़्ज़त है। और हम अभी दुनिया में हैं, जब हमारा अमाल उनके पास जाके खुलता होगा वो क्या सोचते होंगे कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा कैसा है, हम क्या सोचते थे उनके बारे में। अल्लाह ताला हमारे बाप को, हमारे वालिदैन को, अल्लाह हमारे मरहुमीन को, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से दुखी होने से बचा दे। हम ऐसा बना दे कि हमारा अमाल खुलते ही हमारे अल्लाह के पास वो भी खुश हो जाएं और हमारे हक़ पर को अच्छी अच्छी दुआएं करें। अल्लाह ताला उनकी दुआ को अभी भी हमारे हक़ पर को कबूल फरमा ले। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ करने वाला नहीं था, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना उम्मती के लिए दुआ की है। लेकिन हम सब जानमाज में आएंगे तो हम अपना हिस्सा लेंगे, बिना नमाज का हिस्सा नहीं मिल सकता, बिना नमाज का हिस्सा नहीं मिल सकता अपना। देखें हम बहुत सारी ऐसे हमारी दीनी माएँ बहनें हैं जो भी हैं कभी नमाज नहीं पढ़ती रहती हैं, तो कितना उनके अंदर में बेचैनी परेशानी, हालांकि हालात छोटा भी रहता है उनको परेशानी बहुत लगता है। जब वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं उसी हाल में उनको तसल्ली मिलता है, उनके चेहरे में सुकून रहता है, उनके चेहरे में एक अजीब सा खूबसूरती हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब को नमाज की रूहानियत अता फरमा दे और अपनी तक़वा अख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। जो अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया कि मेरे तक़वा अख्तियार करने वाले बंदों के लिए हिदायत है, पहले ही अल्फाज में अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला वो तक़वा अख्तियार करने की हमें तौफीक अता कर दे, हमारी ज़ाहिरी से हमारी बातिनी को बेहतर बना दे।
अल्लाह हमारी बातिनी को अल्लाह देखता है, ज़ाहिर को तो इंसान देखना है। अल्लाह हम सब की बातिनी को अल्लाह ताला बेहतर कर दे। हम अपनी औलाद को सही तरबियत करें, क्योंकि ये औलाद अल्लाह की दी हुई अमानत है, उसको सही खर्च करने की हमें तौफीक अता करें। अल्लाह ताला हमारी मदद करें। ये जो दुनिया में माहौल है, ये जो दुनिया का अभी का माहौल है, नेट का है, मोबाइल का है, आजकल के बच्चों के अंदर में मोबाइल देख देख के बच्चे हमेशा कार्टून देखते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब माएँ को, बहनों को हिदायत अता करे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बच्चों को हम बताएं, बच्चे बड़े हैं ना मानते हैं तो वो उनका गुनाह उनके साथ होगा। अल्लाह तो सुनता है ना, अल्लाह तो देखता है ना, अल्लाह हर चीज़ जानता है कि हम बच्चों को रोकते हैं। हमारी गलती है, हम शुरू से बच्चों को देना शुरू कर दिए थे। और जो जिसके छोटे बच्चे हैं वो अभी से थोड़ा बहुत बाहर को खेलने की आदत डालेंगे तो बच्चे फिर आदत बना लेंगे, मोबाइल से हट जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे। उलमा ने लिखा है, मौत के बारे में आदमी 4 तरीके के होते हैं। एक तो वो लोग जो दुनिया में मनहमक हैं, जिनको मौत का जिक्र भी इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि इससे दुनिया की लज्जतें छूट जाती है। ऐसा शख्स मौत को कभी याद नहीं करता, और अगर कभी करता भी है तो बुराई के साथ, इसलिए कि दुनिया के छूटने का इसको क़लक़ और अफसोस होता है। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला तो है, मगर इब्तिदाई हालत में मौत के ज़िक्र से इसको अल्लाह ताला का खौफ भी होता है और उससे तौबा में पुख्तगी भी होती है। ये शख्स भी मौत से डरता है, मगर ना इस वजह से कि दुनिया छूट जाए, बल्कि इस वजह से इसकी तौबा काम नहीं है कि ये भी अभी मरना नहीं चाहता, अपने हाल की इस्लाह कर ले और इसकी फ़िक्र में लगा हुआ है, तो ये शख्स मौत की नापसंदीदा करने में माज़ूर है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में दाखिल ना होगा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह ताला शानहू भी उसके मिलने को नापसंद फरमाते हैं। देखें मेरे दीनी माएँ बहनें, हम में से जो भी मौत का जिक्र सुनने से कराहत होती है, या मरने का सुन के अजीब सा महसूस होता है, या मरने को डर लगता है, इससे समझ जाएं कि हम मरने से इनकार करते हैं। मरना हमको पसंद नहीं है, दुनिया में हमारा दिल लगा हुआ है। और जब हमको, और मौत का क्या है, मौत तो एक दुनिया से रुखसत होना है, दूसरा दुनिया हमको मिलना है, जन्नत मिलना है, अबदन अबदा होना है वहाँ पर। लेकिन उसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारा जब मौत होता है ना, सबसे पहले अल्लाह का दीदार होता है, सबसे पहले अल्लाह के पास हमने जाना है। तो हम मौत से इनकार करना मतलब अल्लाह से मुलाकात करने का इनकार करना। तो जो अल्लाह से इनकार करता है मुलाकात का, अल्लाह भी उससे इनकार करना मिलने का। जब अल्लाह भी उनसे इनकार करेंगे हमसे, तो फिर हमारा हाल क्या होगा, किस हाल में होगा। मौत तो आकर ही रहेगा, चाहे हम माने चाहे ना माने, चाहे माने चाहे ना माने, मौत का वक्त आ गया और कोई नहीं रख सकता। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह का जैसा अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए वो मोहब्बत हमें अता हो जाए। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगा तो मौत भी अच्छा लगेगा, मरना भी आसान लगेगा, खुशखबरी लगेगा, और मरने की तैयारी करने को दिल करेगा कि हमको अल्लाह से मुलाकात करना है। मौत तो एक नाम है, दूसरा हर गम के बाद कोई नेमत है ना, तो इसी तरीके से एक मौत का जो है वो एक दुनियावी गम है, लेकिन आखिरत के लिए अमाल के हिसाब से खुशखबरी है। लेकिन दूसरा चीज़ ये नेमत है कि अल्लाह का दीदार करना है, अल्लाह का दीदार करना है, और अल्लाह को दीदार करने को कौन नापसंद करेगा। ऐसा तो हमरे तमन्ना बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन मौत का सामना करके अल्लाह का मुलाकात करने का, वो मौत को हमको मुश्किल लगता है। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता करे, और मौत को पसंद करें कि अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से मुलाकात करना है। अल्लाह ताला से मुलाकात करने का जज्बा होगा तो हमें तौबा करने को दिल करेगा, इस्तग़फ़ार करने को दिल करेगा, ज़िक्र अस्कार करने को दिल करेगा, दिल को साफ़ रखने को दिल करेगा, और अल्लाह के बंदों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने को दिल करेगा, रिश्ता निभाने को दिल करेगा। ये दिल का काम है हर चीज़ करने का। देखा, अगर हम किसी अल्लाह के बंदों से अगर नफ़रत करते हैं, वो अगर बोलता है कि क्यों मुझसे बोलती हो नहीं, तो वो बोलते हैं कि देखो मेरा दिल करता नहीं बोलने को, जबकि बोलने का काम हमारा ज़बान का था, दिल का नहीं।
दिल ऐसा चीज़ है, वो सारे का सर्टिफिकेट लेकर बैठा है, और हमारा दिल अगर ख़राब हो गया तो सारा चीज़ ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के दिल को ठीक कर दे, अपना घर नूर से मनव्वर अता फरमाए, हमारे ज़बान को, हमारे आँख कान को, हमारे दिल दिमाग को, हमारे खून गोश्त हड्डी को, दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी ही नूर अता फरमा दे। हम सब को नेक स्वालिह बंदों में शामिल फरमा ले, सारे आलम की हिदायत का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी सारी नेमतों कभी ना ख़त्म वाली नेमतों में शामिल अता फरमा दे। हमारे नस्लों के आखिरी नस्ल तक वो नेमत जारी रहे, जो नेमत अल्लाह ने हमें अता किया है हमारे नस्लों के हर फर्द तक जारी रहे। अल्लाह ताला से हमारी यही दिली दुआ है, और मेरे पढ़ने में सुनाने में जो गलती हुई अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए, और जो मैं पढ़ती हूँ जो समझाती हूँ अल्लाह ताला मुझे खुद भी समझने की तौफीक अता करे, उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। मेरे नस्लों के हर फर्द को हिदायत अता फरमाए, ईमान पर खातिमुन बिल खैर अता फरमाए, सबसे दीन का काम ले, तमाम उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह ताला दीन का काम ले। हम दीन का दावत देना कम कर दिए तो शैतान घर घर में घुस गया। देखें सच और झूठ दोनों साथ में आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हम हैं, शैतान हम जितना दावत देंगे उतना दुनिया में हिदायत फैलेगी, और शैतान कहता है मैं खुद चल के जाऊंगा, मैं खुद सबके पास बारी बारी करके जाऊंगा दावत देने के लिए। तो हमारा दावत देने में कमी होगा, हमारे दिन के लिए मेहनत कोशिश करने में कमी होगा तो शैतान का ज़्यादा हो जाएगा। और हमारे ये जो आज घर घर फितना फसाद है, ये हमारी दावत की कमी की वजह से, हम सीखने सिखाने की कमी की वजह से। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए कि हम सीखें और सिखाएं और दावत ज़्यादा से ज़्यादा दें, दीन के लिए निकलें। 3 दिन हो 40 दिन हो, जिसका जितना हो सके वो निकलने की कोशिश करें, अपने महरम को साथ ही लेकर, महरम को साथ में लेकर। अल्लाह ताला हम सबको सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, हर घर में हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करे, और अपनी अल्लाह हम सब के ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन को बेहतर बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।